Neyse kıvırıyor. Ne diyeyim? Şurada tanıtım. नीचे करके लगा साढ़े 27 साल के ये नहीं कि वो अमेरिका जैसा जेल था जहाँ टीवी गर्म पानी के 27.5 एक पहाड़ ये हमारा है जेल में तो हमारे अपनी सुनाओ हमसे बात अपनी हेलो जी ठीक ठाक सैयद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम नाज़िर साहब ना उसे मत हम मिलते रहते तशरीफ रखो सबके बहुत मुश्किल होता है अठारह 19 साल के बाद हाँ हाँ जनाब बिल्कुल बिल्कुल सर मेरे साथ क्या हाल है खैरियत है वालेकुम जी आज जमात सलाम के नीचे जी आपसे गुफ्तगू करेंगे। अभी बाज़ाब्ता तौर पे प्रोग्राम हमने शुरू नहीं किया है क्योंकि जिन मेहमानों को हमने दावत भेजे हैं या मेहमानों को दावत दी है वो अभी तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपको चंद मिनट आपको इंतज़ार करना पड़ेगा
चंद मिनट के बाद बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू करेंगे। عابد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب جلیل کے بابرکت نام سے ہم آج اس کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے JKLF جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے نائب صدر آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون کے نائب صدر جناب عابد شکور صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے صدارت کریں۔ میں اس کے ساتھ JKLF جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سابق مرکزی سیکرٹری جناب ماسٹر محمد افضل صاحب، جن کا تعلق وادی سے ہے، وادی ترگام سے ہے، جو کہ مقبول بٹ شہید صاحب کے رشتہ دار ہیں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں جناب زاہد حبیب صاحب، سیکرٹری جنرل JKLF مظفر آباد ڈسٹرکٹ یونٹ کے صدر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آ جائے۔ میں آخر میں قائد تحریک جناب امان اللہ خان صاحب، چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں اب جناب شفیق سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ میں جناب راجہ ذوالفقار حیدر صاحب، سیکرٹری جنرل JKLSF جموں کشمیر اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں۔ اس کی آواز کلیئر نہیں ہے۔ اب میں جناب ماسٹر محمد افضل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنا تعارف پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی اللہ رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد تحریک جناب امان اللہ خان صاحب، میرے وطن عزیز کے ایک حساس
حساس خطے کے غیور سامعین السلام علیکم. میرا تعلق وادی کشمیر سے ہے. میں 1987 سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ذریعے وطن عزیز کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. مجھے جب پارٹی کا حکم ملا کہ میں یہاں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں، اس وقت سے لے کر اس وقت تک میں رب جلیل کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین میں بسنے والے اپنے ہم وطنوں سے ہم کلام ہوں. فلسطینیوں کا قول ہے کہ ارباب سیاست قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں. جہاں تک کشمیر کا دیکھتے ہیں، یہاں کچھ مایوسی کے سوا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. کشمیر کے غیور عوام نے جہاں 500 سال اپنی آزادی کے لیے سامراجوں سے جنگ لڑی، لیکن اپنی روایتی سیاستدانوں کے ذریعے وہ ہمیشہ غلام رہی، اور اب تک وہی روایتی سیاست ہے جس نے ہمارے وطن عزیز کو 3 خطوں میں تقسیم کر کے رکھا ہے. جب نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے جوانوں نے، کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ سامراجی طاقتوں کے خلاف جہاد کیا ہے، ان کے خلاف جنگ لڑی ہے اور کامیابیاں حاصل کی ہیں. لیکن پھر جب حال کو دیکھتے ہیں یا 50 سالہ تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اس میں غیور عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں اس روایتی سیاست، جس روایتی سیاست نے ہماری شناخت، ہماری تشخص کو اپنی کرسی کے عوض نیلام کیا ہے، جس نے ہمارے ماں بہنوں کی عصمتیں تک آج تک وہ بیچ ڈالی ہیں. 1931 سے 47 تک کا زمانہ لے لیں. جب دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے غیور لوگوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی، لیکن جب آزادی کا وقت قریب آیا تو ہماری روایتی سیاست 2 حصوں میں بانٹ گئی، جس کی وجہ سے ہمارا وطن عزیز 3 حصوں میں بانٹ گیا. اس کے بعد محض رائے شماری کا نعرہ لگایا گیا. محض رائے شماری نے 22 سال وہاں کشمیر میں جدوجہد کی. کشمیر کا بچہ، ہماری ماں بہنیں، ہمارے بزرگ، ہر کوئی اس کے ساتھ تھا. ہندوستان کی جیلوں میں ہمارے لوگوں نے اپنے لیے ان جیلوں کو زینت بخشا، لیکن 1975 میں پھر وہی روایتی سیاست نے جب ہندوستان سے کمپرومائز کیا تو یہ کہا گیا کہ یہ 22 سال ہماری سیاسی آوارہ گردی تھی. کشمیر کے لوگ روایتی سیاست سے مایوس ہوئے. جب روایتی سیاست سے مایوس ہو کر کشمیر کے لوگوں نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اپنے وطن عزیز کے دور دراز علاقوں تک انہوں نے دیکھنا شروع کیا، تو 2 افراد کا نام، 2 افراد کی شکلیں ان کے سامنے آئیں. ایک قائد تحریک امان اللہ خان اور ان کے ساتھی شہید اعظم محمد مقبول بٹ. جب دیکھا محمد مقبول بٹ شہید اور قائد تحریک امان اللہ خان نے شروع سے ہی روایتی سیاست کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا ہے، تو کشمیر کے لوگوں نے ان دونوں سے اپنا ناطہ جوڑا. انہوں نے کشمیری قوم کو مایوس نہیں کیا. مقبول بٹ نے، شہید مقبول بٹ نے وطن عزیز کشمیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تہاڑ جیل میں پھانسی کو چوما. قائد تحریک امان اللہ خان نے
वतन अजीज की खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए हर तरफ जो जितने भी कश्मीरी, चाहे वो कश्मीर में है चाहे वो कश्मीर से बाहर बाकी दुनिया में रहते हैं, उनको मुनज़्ज़म किया। और एक वक़्त आया 1988 में जब कश्मीर के लोगों ने रिवायती सियासत के खिलाफ अलमी बगावत बुलंद किया, जब कश्मीर के लोगों ने मुफादात की सियासत के खिलाफ अलमी बगावत किया, उसके बाद जब वहाँ पर बंदूकों का जोर था, हमने हिंदुस्तान के खिलाफ काज तारिक अमल्ला खान की सरबराही में बंदूक उठाई। उसके बाद जब 2 साल वहाँ हमने रिवायती सियासत को ख़त्म किया तो वो हमारे रिवायती सियासतदान यहाँ आज़ाद कश्मीर के रिवायती सियासतदानों से मिलकर वही चोगा पहनकर, वही रिवायती सियासी चोगा पहनकर हमारे इस्लामाबाद वालों से मिले और हमारे खिलाफ एक महज वहाँ खड़ा किया, जो नारा जिस नारे के लिए कश्मीर ने 3 साल वहाँ पर अपनी असमतें दी थी, अपने जवान उसकी नज़र किए थे, उसी के लिए उसी नारे के खिलाफ वहाँ हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी जमातें बनाई। हमें इन बातों से कोई गुज़र नहीं कि कौन क्या चाहता है। हम ये चाहते हैं कि काज तारिक अमल्ला खान के हाथ मजबूत करें। वहाँ कश्मीर में हर कोई लड़का ये कहता है, हर कोई बुजुर्ग छोटा बड़ा काज तारिक को देखना चाहता है, इनका दीदार करना चाहता है। आप यकीन माने 1988 से लेकर 92 तक, जब 92 में काज तारिक अमल्ला खान ने ये कॉल दी थी कि 11 फरवरी 1992 को मैं सीज फायर रोक कर पार चला जाऊं, आप यकीन करें आपने BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, दुनिया के तमाम स्टेशनों से सुना होगा कि कश्मीर का बच्चा बच्चा काज तारिक का मुंतज़िर था। वो कौन से अवामिल थे, वो कौन से अवामिल थे कि काज तारिक वहाँ उनसे न मिल सके, वो सारी दुनिया को पता है। तो हजरात, यहाँ गिलगित के लोगों को हमसे शिकवा है। मैं रियासत जम्मू कश्मीर का कोई रिवायती सियासतदान आपसे उन जातियों का माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि खुदा और रसूल को हाजिर नाज़िर जानकर हम भी इसी तरह, जिस तरह आप बुनियादी हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, जिस तरह आप अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, हम भी मातृ वतन के हुकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं। मैं उन गयूर, उन लोगों की तरफ से, वादी के लोगों की तरफ से, भारतीय मकबूजा कश्मीर के अवाम की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। आपको ये कहता हूँ कि हम वो लोग हैं जिन्होंने 1947 से पहले आज तक, वह हमारे आबा व अजदाद कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों की लाशें इन जंगलों में सड़ी रहती थी। जब वो यहाँ आपको देखने आते थे, यहाँ से लोग वहाँ हमसे मिलने आते थे। इसलिए मैं एक बात वसूख से कहता हूँ कि पिछले दिनों मुझसे एक साहब ने कुछ शिकवे किए थे। मैंने कहा यार, ये हमारी कौम का एक अलमिया है कि हम कायदीन का रेबान नहीं पकड़ते हैं, लेकिन देखना यह कि रिवायती सियासत और इनकलाबी सियासत, काज तारिक अमल्ला खान का की उम्मीदें वाबस्ता है 1,30,00,000 अवाम से। काज तारिक अमल्ला खान जिस पर कश्मीर का बच्चा बच्चा फख्र करता है, इससे तारीख हिसाब लेगी कि आपने अपने वतन अजीज की शनाख्त के लिए क्या किया, आपने अपने वतन अजीज की आज़ादी के लिए क्या किरदार अदा किया। इससे कश्मीर में बसने वाले हाय हामा के लोग, जहाँ इन्हें सबक पढ़ा है, वो लोग ये नहीं पूछेंगे कि हमारे हाय हामा में पिछले 30 साल पहले भी हाई स्कूल नहीं था और आज भी हाई स्कूल नहीं है। अगर हमने आपकी परवरिश की थी तो आपने हमारी खिदमत क्यों नहीं की? क्योंकि आप देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किसी ने कराची का हिसाब नहीं मांगा। उससे अगर लोग कहते हैं, उससे अगर लोग याद करते हैं बाबा कौम के हैसियत से, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान की सूरत में एक तोहफा दिया। इसी तरह काज तारिक अमल्ला खान से कश्मीरियों ने जो उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं वो यही है कि काज तारिक अमल्ला खान इस वतन अजीज के 3 बिखरे हुए हिस्सों को मिलाकर एक आज़ाद और खुद मुख्तार शक्ल में हमें कश्मीर देगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं कायदे तहरीक जनाब अमानुल्लाह खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे आ जाएं।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मादर वतन के उस हिस्से के बाशिंदों जहाँ मैंने जिस्मानी तौर पर जन्म लिया था, मैं आप तमाम हज़रात का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप बहुत सारी मुश्किलात, मुझे आपकी मुश्किलात का एहसास है, बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद आप यहाँ तशरीफ़ लाए। कुछ मसरतें होती हैं, कुछ मुश्किलात होते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान चाहने के बावजूद नहीं कर सकता है, उसके बावजूद आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आप तमाम हज़रात का इंतहाई मशकूर हूँ। पहली बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये कि सियासी तंजीमें, वो इदारे, वो तंजीमें जिसका ताल्लुक़ सियासत से हो, तीन किस्म की होती हैं। एक होता है प्रेशर ग्रुप, एक होता है पॉलिटिकल पार्टी, और एक होती है तहरीक। प्रेशर ग्रुप कुछ इंतहा पसंद लोगों का एक मजमुआ होता है जो अपने हकूक़ के लिए, वो जायज़ हकूक़ होते हैं, हकूक़ के लिए किसी न किसी तरह गवर्नमेंट पर प्रेशर डालता है या उन इदारों पर प्रेशर डालता है जो उसके खिलाफ लड़ते हैं, वो अपना मकसद हासिल करता है। दूसरी होती है एक पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी एक पॉलिटिकल प्रोसेस से चलकर अपनी मंजिल हासिल करना चाहती है, और आम तौर पर, तहबों का नहीं, आम तौर पर पॉलिटिकल पार्टी की मंजिल इक़्तिदार की कुर्सी होती है। और इक़्तिदार की कुर्सी हासिल करना आम तौर पर लोग कहते हैं मायूब सी चीज़ है, मैं कहता हूँ नहीं, इसलिए कि हर सही पार्टी अपने मंशूर पर अमल उसी वक्त कर सकती है जब वो इक़्तिदार हासिल करे। इसलिए इक़्तिदार हासिल करना, अगर वो इक़्तिदार सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी ज़्यादात बनाने के लिए, अपने उसके लिए है, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन इक़्तिदार हासिल करना, अवाम को हकूक़ दिलाने के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं। और तीसरा इदारा होता है सियासत के लिहाज से, जिसे हम तहरीक कहते हैं। तहरीक एक ऐसा इदारा होता है, सियासी इदारा, जिसकी मंजिल हुसूल आज़ादी होता है। आज़ादी का हुसूल होता है, कुर्सी नहीं होती है, यानी वक्ती तौर, यानी महदूद मफादात नहीं होते। तो खुशकिस्मती और या किसी हद तक बदकिस्मती से भी कहें कि हमारी तंजीम जो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये एक तहरीक है। हमारी तहरीक का मकसद पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को, जिसमें मेरे ख्यालात के मुताबिक, हमारी तंजीम के नज़रियात के मुताबिक ये इलाका गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, उसको दोबारा मुनज़्ज़म करके एक आज़ाद खुद मुख्तार ममलकत बनाया जाए। ये है हमारी तंजीम और तहरीक के लिहाज से। मैं जो बातें करूँगा, आप मेरी बातों को इस हकीकत की रोशनी में परखेंगे कि ये कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो है वो सवालात जो मेरी ज़ात के बारे में, जो मेरी तंजीम के बारे में, जो हमारी आइडियोलॉजी के बारे में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जहनों में पूरा एक सवालिया निशान बना हुआ होता है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अमानुल्लाह, तुम तो यहाँ पैदा हुए थे, हम रेगड़े खाते रहे, हम FCR बर्दाश्त करते रहे, हम दूसरे जाने बड़े प्रेशर बर्दाश्त करते रहे, और तुम जाकर वहाँ कश्मीर में अपनी कश्मीरियत चलाते रहे। ये क्या तुम्हारी तरफ से इस इलाके के लिए के साथ कोई जुल्म नहीं है, बेवफाई नहीं है, दगा नहीं है? ये एक आम तौर पर सवाल है जो अमूमन गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान, गिलगित बल्तिस्तान के बुजुर्ग, मेरी उम्र के भी लोग मुझसे करते हैं। मैं आज यहाँ आपके यहाँ हाजिर हुआ हूँ बुनियादी तौर पर इस सवाल का जवाब देने। बुनियादी तौर पर यह सवाल है। कबल इसके कि मैं इस सवाल के सिलसिले में आगे बढ़ूँ, यहाँ मेरे कुछ बुजुर्ग हैं जिनका ताल्लुक सियासी पार्टियों से है। होना अमूमन ये होता था आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में हमारी जब तंजीम में कोई इज्तिमा होता है तो वहाँ हम दूसरी पार्टियों के हेड्स को स्टेज पर बिठाते हैं, एक एहतराम देना होता है। यहाँ मेरी चंद डिफ़िकल्टीज़ हैं।
वरना मैं शायद ये गुस्ताखी न करता कि मेजर हुसैन शाह साहब वहाँ बैठे हैं और वो यहाँ नहीं बैठे हैं। मीर साहब या दूसरे जितने भी हैं पार्टियों के हेड्स हैं, उन्हें यहाँ बैठना चाहिए था, लेकिन हमारी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। जैसे मैंने कहा, हमारी एक तहरीक है, तहरीक में कुछ तहरीक वालों की कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। मेरी तंजीम जो है ये हांगकांग से लेकर न्यूयॉर्क तक कोई 17,000 मील लंबी एक पट्टी है, उस तक फैली हुई है। मशरिक में हम हांगकांग में है, यहाँ से मशरिक की तरफ कोई 7,000 मील, और मगरिब में हम उधर तक है न्यूयॉर्क तक। न्यूयॉर्क में हमारी ब्रांच है, वो कोई यहाँ से कोई 11,000 मुरब्बा मील दूर है। तो मुझे हर चीज़ को देखना होता है कि यहाँ अगर मैंने हुसैन शाह साहब को बुलाया, किसी और पार्टी को नहीं बुलाया, ख्वाह वो ना ही आया हो, कल उसने गिला करना है कि भाई उन्होंने वो हमें बुलाया, उनको नहीं बुलाया। इसलिए कुछ डिफ़िकल्टी की वजह से मैं उन तमाम हज़रात से माज़रत चाहता हूँ जिनका हक़ था कि वो यहाँ स्टेज पर होते, लेकिन वो हमारी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके। अब मैं आता हूँ अपने असल सवाल की तरफ। वो सवाल ये है आप लोगों की तरफ से मुझे कि आप तो यहाँ पैदा हुए थे, आपने एक सूझ यानी सियासी माहौल में अपनी सियासी ज़िंदगी की इब्तिदा की श्रीनगर से। पैदा मैं अस्तौर में हुआ, 5 साल की यानी उम्र में कश्मीर चला गया, मेरी हमशेरा वहाँ थी, वहाँ पढ़ा मैंने, वहाँ सियासी पैदाइश भी मेरी वहाँ हुई। तो पहला सवाल है, मैं समझता हूँ आपको हक हासिल है कि आप मेरा गला पकड़ें कि आपने अपने इलाके के लिए के साथ ये बेवफाई क्यों की, अपनी एनर्जी पूरी वहाँ क्यों लगाई, यहाँ क्यों नहीं लगाई। तो पहली बात ये कि ये वक्त बताएगा कि मैं हक पर हूँ या नहीं, कि ये इस इलाके समेत पूरी रियासत कश्मीर की बका, मैं बार बार कहता हूँ, हम जो लड़ाई आज लड़ रहे हैं वो आपके लिए भी, अब मेरे अपने लिए नहीं, वो हमारी आइंदा नस्लों के लिए, कि ताकि आइंदा नस्लें ज़रा सर उठाकर ज़रा ठाठ से बड़े बगैरत तौर पर एक आज़ाद मुल्क के अफराद की तरह से चल सकें। उस हैसियत से मैं समझता हूँ हम जो कुछ कर रहे हैं, लिबरेशन फ्रंट वाले जो कुछ कर रहे हैं, वो जहाँ श्रीनगर के मफाद में है, वहाँ जहाँ मकबूजा पूंछ के मफाद में है, जहाँ मुजफ्फराबाद के मफाद में है, वहाँ हमारा नजरिया इस इलाके के मफाद में भी है। और अगर मैंने अपनी पूरी थोड़ी बहुत जो सलाहियतें हैं, वो मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरा ज़राए यहाँ पर ये मैंने सर्फ किए, तो शायद हमें वो मुकाम न मिल सके, वो मकसद न मिल सके जिसमें हम तमाम लोगों की नजात है। नंबर 1 पहली वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि खुद मुख्तार कश्मीर का जो हमारा नजरिया है, उसमें आप लोगों की नजात उसमें शामिल है। ये बाद में आप अगर चाहें तो आप इसकी वजाहत बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर 2 वजह कि मेरा आपसे दूर रहना, वो ये है कि मैंने इब्तिदा की अपनी सियासी ज़िंदगी की श्रीनगर से। 13 साल की उम्र का था 1947 में, तो 13 साल की उम्र में पहली बार जेल गया मैं तहरीक आज़ादी के सिलसिले में। तो जिस माहौल में इंसान पलता है, आप खुद अपनी तरफ एक नज़र डालें कि आप में से अक्सर जानते हैं कि ये इलाका कश्मीर का हिस्सा है। जिस घनसारा सिंह को यहाँ उतार कर आपने यानी डोगरों से हासिल की थी, वो डोगरों का गवर्नर था ना, वो हिंदुस्तान का गवर्नर नहीं था, वो किसी कहीं और का नहीं था। उस हैसियत से मैं समझता हूँ कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो यहाँ की भलाई के लिए है। दूसरी बात जो मैं वजाहत करना चाहता हूँ, इसमें शायद आप इससे मेरी इस बात से मुतमईन हूँ, वो ये कि मैंने इब्तिदा की सियासी ज़िंदगी की कश्मीर में, और वहाँ से जब आया यहाँ हमने स्टार्ट की तहरीक कश्मीर के बारे में। वहाँ से आते ही यहाँ हमारे सुल्तान हमीद साहब अगर यहाँ हैं, उन्हें दावतनामा भेजा था, वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि पहला काम जो मैंने यहाँ आकर किया वो था पेशावर में गिलगित स्टूडेंट्स फेडरेशन, पहली तलबा की तंजीम गिलगित की, जो मैंने और दूसरे बहुत सारे असहाब थे, मेरे एक साथी थे मरहूम महमूद वली यहाँ के पुंजाल के,
सुल्तान हमीद साहब हमारे सदर थे, मैं सेक्रेटरी था। ये अभी हमारे जिनके मेरे साथी का, मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ, गाजी जौहर साहब, वो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थे। अली अहमद जान यहाँ के जुगलोट के, वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे। इस तरह पहला काम जो मैंने किया यहाँ पाकिस्तान आकर, वो था कश्मीर यानी गिलगित के, उस वक्त बल्सान हमारे साथ वो पूरा कोऑपरेट नहीं करता था, गिलगित के तलबा को पहली तंजीम जो बनी 1952 में, 1952 में हमने पेशावर बनाई। ये एक इब्तिदा थी मेरी यहाँ की। लेकिन फिर एक ऐसे माहौल में यानी चला गया मैं, जहाँ मैं दोबारा कश्मीरी सियासत की तरफ चला गया। और 1965 में जब हमने जम्मू कश्मीर महाज रायशुमारी बनाया, तो उस वक़्त हमने तमाम ने, मैंने भी और शहीद मकबूल भट्ट ने भी, मकबूजा कश्मीर की मिट्टी को हाथ में लेकर हमने अल्लाह ताला से, अपने ज़मीर से, अपने उस मिट्टी से जो मकबूजा कश्मीर जो हिंदुओं के, डोगरों के या हिंदुस्तानी के कब्जे में थी, उसको हाथ में लेकर हमने अल्लाह ताला से ये वादा किया, अहद किया, हलफ उठाया कि हम इस ज़मीन की इंडिया से आज़ादी के लिए अपनी जान तक भी देने से दरेग नहीं करेंगे। आप सब मुसलमान हैं, क्या मेरे लिए मुनासिब है कि मैं उस हलफ से इनहराफ करूं? क्या मेरे लिए मुनासिब है कि उस हलफ से मैं इनहराफ करूं जो मैंने जम्मू से लाई हुई मिट्टी को हाथ में लेकर अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर समझते हुए मैंने हलफ उठाया था? उस हलफ ने मुझे मजबूर किया कि मैं उस तरह पूरी अपनी ज़िंदगी लगाऊं। उसके बाद तंजीम बनी, तो मैं बार बार कभी सेक्रेटरी जनरल का और कभी प्रेसिडेंट का भी यानी चेयरमैन बनता रहा इस तंजीम का। और जब भी मैं बनता रहा तो मैंने अल्लाह ताला को, अपने ज़मीर को, अपने मादर वतन को सामने रखकर मैंने हल्फ उठाया कि मैं पूरी रियासत की आज़ादी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी दे दूंगा। क्या मैं उससे इनहराफ कर सकता था? मेरे ख्याल में नहीं कर सकता। तीसरी बात कि अमूमन मुझे कहा जाता है कि आपने गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के किसी आदमी ने यहाँ के हकूक़ के लिए 15 महीने की कैद काटी है? गिलगित वाले जानते हैं कि 1970 से लेकर नवंबर 1970 से लेकर फरवरी 1972 तक के 15 महीने मैंने कोई चोरी नहीं की थी, मैंने कोई डाका नहीं डाला था, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया था। मैंने इस गिलगित के बाजार में लाउड स्पीकर लेकर मैं ऐलान किया था कि ये रेजिडेंट जो है तुम्हारा खुदा नहीं है, तुम्हारा हाकिम नहीं है, तुम्हारा मुलाजिम है, तुम्हारा नौकर है। आज भी मैं ऐलानन कहता हूं, ये चीफ सेक्रेटरी जो है वो आपका खुदा नहीं है, नौज़ुबिल्लाह। वो सिविल सर्वेंट है। सिविल सर्वेंट का है मतलब है अवाम का नौकर, अवाम की खिदमत करने वाला। अगर वो अपने आप को खुदा समझता है तो गलत है। उसके खिलाफ, उसकी उस खुदाई नौज़ुबिल्लाह खुदाई के खिलाफ बगावत करना मेरा फर्ज है, हक ही नहीं बल्कि मेरा फर्ज। यही बात मैंने कही थी। FCR था, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। मालिया, ये जुगलोट वाले या गिलगित में 2 रुपया मन के हिसाब से वो अनाज देते थे गवर्नमेंट को, और 6 महीने के बाद नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी में वही गल्ला उनको बेचा जाता था 60 रुपया मन के हिसाब से। इस किस्म की यानी जुल्म के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी। हमारे एक साथी थे, बुजुर्ग थे, और मेरे ख्याल में उनकी बड़ी खिदमात भी हैं, उनकी बड़ी खासियतें भी थी, मरहूम जौहर अली खान। वो जब एक जमाने में यहाँ पर ग्रेजुएट के हैसियत थे, क्लर्क थे, उसके ऊपर उसके सीनियर जो ऑफिसर था वो पेशावर का मैट्रिकुलेट था। उसे किसी ने कहा, भाई व्हाट डू यू वांट टू बी? उसने कहा, आई वांट टू बी ए टाइपराइटर, मैं टाइपराइटर बनना चाहता हूँ। उसको पता तक नहीं था टाइपराइटर क्या होता है, टाइपिस्ट क्या होता है। तो एक हमारे लोकल ग्रेजुएट के ऊपर एक मैट्रिकुलेट को रखा गया था, और वो मैट्रिकुलेट जो है वो लोकल ग्रेजुएट जौहर अली से 25% ज्यादा तनख्वाह लेता था। एक जुल्म, इसके खिलाफ, इसी जुल्म के खिलाफ मैंने आवाज उठाई थी। यहाँ दर्जनों नौकरियां थी। कराची से मैं निकाला करता था एक रिसाला वॉइस ऑफ कश्मीर के नाम से, एक उसका पूरा सप्लीमेंट मैंने निकाला गिलगित बल्तिस्तान के नाम के हवाले से, और मैंने साबित किया था कि गवर्नमेंट ने जितना पैसा इस इलाके की तरक्की के लिए दिया है उसका 75% कुछ वापस चला गया, कुछ इन ब्यूरोक्रेट्स को, टेक्निकरेट्स के जेब में चला गया। आप लोगों को, बड़े बुजुर्ग लोगों को मालूम होगा कि यहाँ एक मंजूर साहब एक DFO थे।
जंगलात के बारे में लिखा, PWD के बारे में लिखा, उन्होंने मुझ पर हद की इज्जत का केस किया। मैंने कहा ओके, आए आप मैदान में आ जाए, मैं आपसे माफी नहीं लूंगा, मैदान में साबित करूंगा मैं कि आपने जो कुछ किया है, इस तरह के लिए जो कुछ जुल्म किया है, मैं साबित करूंगा। केस खुर्शीद मरहूम हमारे यानी आजाद जिसमें क़यादत है, उन्होंने कहा मैं फिर यानी फ्री केस लड़ूंगा पानी पिलाने। तो उसके बाद मंजूर साहब भागे। तो इस सिलसिले में, इसी हकूक की जद्दोजहद के सिलसिले में मैंने 15 महीने यहाँ जेल काटी, और 15 महीने से ज़्यादा किसी ने नहीं काटी है। हमारे मरहूम अजीम मुजाहिद कर्नल हसन साहब ने मेरे ख्याल में 15.5 महीने या 16 महीने काटी, लेकिन उनकी जो सज़ा थी वो भुट्टो साहब से टकराव के नतीजे में थी, वो अवामी हकूक़ के लिए नहीं थी। भुट्टो के सामने सीना तान के बात करना एक बड़ी बात थी। ये वो अजीम मुजाहिद ही था जिसने भुट्टो के सामने पूरे उससे ताकत से उसने कहा, भुट्टो मैं गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं, मैं कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने कहा उठाओ ले जाओ उसको गुपिस में जाकर बंद कर लो। उन्होंने 16 महीने केस काटी, लेकिन वो अवामी उसके लिए नहीं थी। अवामी उसके लिए सबसे ज़्यादा यानी किसी ने वो कैद काटी है। यहाँ मेरे बहुत सारे साथी बैठे हैं, ईसा साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारे साथ जेल काटी है। बहुत सारे मेरे नादली साहब हैं, बहुत सारे साथी यहाँ इस इज्तिमा में बैठे हैं जिन्होंने अच्छी खासी जेल काटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जेल जो काटी वो मैंने काटी है। उसके बावजूद अगर आप लोग ये कहें कि अमान ला आपने इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया, तो मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी सी ज्यादती है आप लोगों की तरफ से मेरे साथ। दूसरी बात, आपको मालूम होगा कि जब मैं पहली बार आया था यहाँ अपने साथियों के साथ, जिनमें वो मकबूल भट्ट मेरे अजीम साथी भी थी जिनको बाद में फांसी हुई, यहाँ आया दूसरे ही दिन हमें भेड़ बकरियों की तरह जीप में भरकर हमें यहाँ से लेकर कमेला छोड़ा गया, अफगानिस्तान में छोड़ा गया। लेकिन उसके बाद 1 महीने के बाद फिर दोबारा आए हम। उस 1 महीने के दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि अगर इन गिलगित वालों को कोई चीज न दी गई तो ये कश्मीरी इनको भी उकसाएंगे। नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर 1970 और नवंबर आखिर 1970 के दरमियान आप डेट्स देखें, अखबार देखें, रिकॉर्ड देखें, ये जो लूली लंगड़ी आपकी एनए काउंसिल बनी है ये उन दिनों की बनी हुई है। इसके बनने में भी इनडायरेक्ट हाथ हमारा था। हमने यहाँ आकर हल्ला गुल्ला किया, यहाँ के लोगों को हकूक नहीं मिलते हैं। आप मुझे बताएं, मोहम्मद शाह काचू मोहम्मद शाह साहब को भी मैंने दावत दी थी, शायद ना आ सके, वो गवाह हैं। 47 में वो इस इलाके के नुमाइंदे थे कश्मीर असेंबली में, कपलों के राजा असेंबली में यानी इस इलाके के नुमाइंदे थे, गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे थे। और पाकिस्तान में 50 साल के बाद भी आपको नुमाइंदगी नहीं। इन चीजों के खिलाफ हमने आवाज उठाई, और वो जो छोटी मोटी लूली लंगड़ी आपकी ये बनी एनए काउंसिल, एनए एडवाइजरी काउंसिल उस वक्त कहा जाता था, वो भी हमारी उन्हीं कोशिशों के नतीजे में थी। बहुत बड़ा हादसा, ये नहीं कि सिर्फ हमारी वजह से, और में बहुत सारे मामला थे, लेकिन हमारी उस जद्दोजहद का एक हिस्सा था कि आप लोगों को ये वो हकूक मिले। नंबर 4 कि मेरे बहुत सारे शायद इसी में यहाँ मजमुआ में बैठे होंगे जो ये जानते हैं कि कराची में मेरे जो इदारे हैं, या मैं ज़ाती तौर पर जो वो कराची में रहता था, मेरा स्कूल है, कॉलेज था, वहाँ एक मरकज़ था। हमने गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो एक ज़माने में एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, एक खला था, और उस तंजीम ने एक पॉलिटिकल पार्टी की जो एक ज़रूरत थी वो पूरा किया था। उसके बाद उसका खात्मा हो गया, ये और बात है। उसके बाद मुझे मेरे ख्याल में मेरा फ़र्ज़ बनता है ये भी कहना कि आपकी ये जो बार काउंसिल है, यहाँ पर बार काउंसिल नहीं बल्कि ये जो बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन है, इसने भी एक ज़माने में एक फुल फ्लेज पॉलिटिकल पार्टी का एक किरदार अदा किया है। वो जो थी गिलगित बल्तिस्तान सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उसके क़याम में मेरा बहुत बड़ा हाथ था। और यहाँ सेंट्रल बार एसोसिएशन बनाने में मेरे उन दोस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ है जिनका किसी न किसी तरह कराची में मेरे साथ ताल्लुक था। आपकी बार एसोसिएशन देखें, यहाँ अच्छे खासे मेजॉरिटी मेरे ख्याल में कराची के ग्रेजुएट्स की है, उनके साथ मेरा किसी न किसी तरह ताल्लुक था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि मैंने इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया है तो ये आपकी जाति है, और मैं ये अगर समझूं कि मैंने बहुत कुछ किया है, ये भी मेरी तरफ से मेरे ख्याल में थोड़ी सी वो है, एग्जेजरेशन है।
मेरी मजबूरियां हैं। मैंने पहले बताया आपको कि मैं इस पूरे इलाके को एक पॉलिटिकल यूनिट समझता हूं और पूरी इलाके की भलाई में आपकी भलाई भी है। कल अगर पूरी स्टेट इंडिपेंडेंट हो जाती है, आपको जो फवायद यानी हासिल होंगे, मेरे ख्याल में आम हालात में आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। उसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। वो जदोजहद बजाते खुद इनडायरेक्टली बिला वास्ता तौर पर इस इलाके की बेहतरी के लिए। तो इसलिए आप मुतमईन हो या ना हो, मुतमईन हो या ना हो, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने इस इलाके के बेहतरी के लिए इस एक यूनिट के रियासत जम्मू कश्मीर के एक यूनिट की हैसियत से और मेरी जाए पैदाइश की हैसियत से, दोनों हैसियतों से मैंने जो कुछ भी किया है मेरे ज़मीर के अपने मुताबिक किया है। इससे ज़्यादा करना इंसानी हैसियत से मेरे बस में नहीं था। आगे भी मैं आपसे भी कोई एहसान करके नहीं, अल्लाह ताला से, अपने आप से, अपने ज़मीर से, अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से वादा करते हुए मैं वादा करता हूँ कि जो कुछ मुझसे हो सकेगा, जो कुछ हमारी तंजीम से हो सकेगा। हमारी तंजीम सबसे पहले यहाँ कौन सी कश्मीरी तंजीम आई थी? कश्मीरी का जब मतलब लेते हैं तो मैं उसमें उस कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल करता हूँ। ये वही लोग थे ना जिन्होंने यहाँ आकर हल्ला गोला किया और कभी हमें भेड़ बकरियों की तरह वो कर लिया और दूसरी दफ़ा मेरे साथियों को गिलगित स्काउट्स के क्वार्टर गार्ड में बंद किया और मेजर उठाकर जेल में बंद कर दिया। 15 महीने मैंने काटे। तो उस हैसियत से जो कुछ हमसे हो सका था हमने किया है। मैं ये कोई दावा नहीं करता, कोई बोस्टिंग नहीं करता कि हमने बहुत कुछ किया है, मैंने ज़ाती तौर पर, ये मेरी तंजीम ने, लेकिन जो कुछ हमसे हो सका था किया था, आगे भी करेंगे। और अगर आप लोगों ने ताउन किया, जाहिर है आज की दुनिया में इंसान इनफरादी तौर पर कुछ नहीं कर सकता। एक और एक 11 होते हैं। तो इज्तिमाइयत जो है आज की सोसाइटी, आज की दुनिया की एक बुनियादी ज़रूरत। उस हैसियत से अब हमने यहाँ तंजीम का आगाज़ किया है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये समझते हैं कि हमारा नज़रिया सही है, उन पर एक इखलाकी फ़र्ज़ आयद होता है, उन पर एक कौमी फ़र्ज़ आयद होता है और उन पर एक इलाकाई फ़र्ज़ आयद होता है कि वो इस तहरीक का साथ है। ये था पहला सवाल जो आपके जहन में हमारी तंजीमों के बारे में आता है, सवाल करते हैं, अमूमन करते हैं। अभी हाल ही में मैं कराची गया तो वहाँ कराची यूनिवर्सिटी में लड़कों ने मुझे बुलाया, तलबा थे, आज़ाद कश्मीर के भी थे, गिलगित बल्तिस्तान के भी थे। तो वहाँ सवाल हुआ गिलगित बल्तिस्तान के बारे में। तो हमारे यहाँ कुछ सादगी है, सादगी बहुत अच्छी भी चीज़ होती है लेकिन बड़ी ख़तरनाक भी होती है। सादगी एक अच्छी चीज़ है लेकिन इंतहाई ख़तरनाक भी है क्योंकि इस सादगी से लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं तकरीर कर रहा था तो एक साहब ने, मैं देख रहा था, दूसरे को अंगेज किया कि खड़े होकर उसने कहा, अमान साहब आप यहाँ गिलगित की बातें करते हैं तो आपको तो वहाँ कोई पयालो, कोई गडरिया भी नहीं जानता है, आप कहाँ लीडरी की का दावा करते हैं? तो मैंने कहा वाकई गडरिया तो मुझे नहीं जानते, अलबत्ता इंसान सारे के सारे जानते हैं मुझे वहाँ के। तो मकसद ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हो सकता है उनके नज़रिए का जो रेंज है, जो वसत है, जो तवालत है, उस हैसियत से मुमकिन है वो ठीक कहते हो। लेकिन मैंने शुरू में कहा है, अपनी मजबूरियां हैं। मैं अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे सकता, मैं उस मकबूजा कश्मीर की मिट्टी को धोखा नहीं दे सकता, मैं अपने ज़मीर को धोखा नहीं दे सकता है, मैं इस अस्तोर या गिलगित में अपनी पैदाइश की हकीकत को धोखा नहीं दे सकता है। मुझे इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। तो उस हैसियत से जो कुछ हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आपके उस सवाल के जवाब के लिए तशफ़ी होनी चाहिए। दूसरा एक अहम सवाल जो हमसे किया जाता है, बदकिस्मती से हमारा एक मोटो है, हमारी तंजीम का एक मोटो है। मोटो ये है कि हम बिकना, झुकना, रुकना नहीं जानते। हम बिकना, झुकना, रुकना नहीं जानते। मैं यहाँ तकरीर कर रहा था सदर बाजार से, 1971 में गुजर रहा था कि रेजिडेंट तुम्हारा नौकर नहीं, तुम्हारा खुदा नहीं, तुम्हारा नौकर है। तो एक बाबा पता नहीं चिला साइड के थे, कहाँ के थे, आकर मुझे कहने लगा, मिस्टर तुम यतीम होना चाहते हो क्या है? क्या ये पागलपन लगाया तुम्हें? अभी शूट करेगा तुम्हारा रेजिडेंट जिसको तुम ये कहते हो, वो तो खुदा के दूसरे नंबर पर है।
لیکن ہم نے اس ریزیڈنٹ کی نہیں مانی. یہاں ایک احمد سعید صاحب تھے, اس نے جو کچھ کیا, میں نے عدالتی بیان میں لکھا کہ احمد سعید کی پگڑی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, قمیض شلوار بھی ہے لمبی چوڑی, اس کا نام احمد سعید ہے, جج کی کرسی پر بیٹھا ہے, اور یہ تین چیزیں جو ہیں پگڑی, داڑھی, یہ قمیض شلوار سکھوں کی بھی ہوتی ہے. اگر وہ احمد سعید انصاف نہیں کرتا ہے تو اس میں اور کھڑک سنگھ میں کوئی پتہ نہیں. اس کو ایسا صاحب کو معلوم ہے, میری تحریر میں ہے, میرے کتاب بنائی ہے, اس میں لکھا ہے ہم جھکنا اور بکنا نہیں جانتے. جب ہم جھکنا بکنا نہیں جانتے تو ہم کسی کے سامنے جھوٹ بولنا نہیں جانتے. خدا کا فضل ہے کہ ہمارے ظاہر و باطن ایک ہے, ہمارا قول اور فعل ایک ہے. اس لیے عموماً یہ جو بیوروکریٹک ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے خلاف ہیں. واحد صاحب اگر یہاں ہوتے, کہیں جوائنٹ سیکرٹری ہوتے یا کشمیر افیئرز کے جوائنٹ سیکرٹری ہوتے, فائلیں دیکھی ہوتی, انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ جانتے یہ کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اس وجہ سے یہاں کے ان ایلیمنٹس نے, جن کے انہی کارروائیوں کی وجہ سے آپ کا ایسٹ پاکستان گیا, جن کے انہی کارروائیوں سے آپ کے افغانستان میں آپ نے بہت بڑا رسک لیا تھا, وہاں جو کچھ ہو رہا ہے آپ جانتے. انٹرنیشنل لیول پر پاکستان اکیلا ہو گیا ہے, وہ کس کی مہربانی ہے؟ وہ بیوروکریٹس کی مہربانی ہے, وہ ڈپلومیٹس کی مہربانی. کل تک آپ کے بہت بڑے 3 ساتھی, یعنی بہت عظیم ساتھی تھے, 2 کم از کم, ایران اور چین. کیا وہ آج آپ کے ساتھ ہے؟ پوری طرح نہیں, بالکل نہیں. ان کا ٹریو بن رہا ہے انڈیا کے ساتھ. یہ کس کی مہربانی؟ بیوروکریٹس میں. اور وہی بیوروکریٹس ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب یہ لبریشن فرنٹ والے تو پاکستان کے مخالف ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں, جس چیز کو آپ پاکستان کہتے ہیں, عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب ہے حکومت پاکستان. نو, پاکستان کا مطلب ہے پاکستان کی وہ 3 لاکھ مربع میل سرزمین, پاکستان کے 14 کروڑ انسان پاکستانی, پاکستان کے حکومت اور پاکستان کا اقتدار اعلیٰ. پولیٹیکل سائنس جن لوگوں نے پڑھا ہے انہیں پتہ ہے ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام پاکستان ہے. مجھے بتائیں, میں جب تحریک چلا رہا تھا ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا, حکومت نے ہمارے خلاف 10 پارٹیاں کھڑی کر دی, تو پشاور کا ایک پٹھان تھا جس سے ہم نے اسلام یعنی وہ ادھار لیا. 6 سال سے میں اس آدمی کا 12 لاکھ روپیہ کا مکرو چلا آ رہا ہوں. وہ کبھی کبھی دروازے پر آتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس نہیں, جس کو دے دوں گا. وہ ایک پاکستانی ہے. تو کیا میں اس پاکستانی کے خلاف ہو سکتا ہوں؟ اگر میں اس پاکستانی کے خلاف ہوا تو مجھ سے بڑا کوئی احسان فراموش ہو سکتا ہے؟ مجھ سے بڑا کوئی بدتینت انسان ہو سکتا ہے؟ نو. اسی طرح جب میں نے اور مقبول بٹ شہید نے تحریک سٹارٹ کی, اذان ہو رہی ہے. پاکستان اور حکومت پاکستان 2 مختلف چیزیں ہیں. مملکت پاکستان کے بارے میں ہماری ایک واضح پالیسی ہے کہ ہم مملکت پاکستان کے خیر خواہ ہیں. خیر خواہ کا مطلب ہے خیر چاہنے والا. ہم دعا کرتے ہیں پاکستان پھلے پھولے, مضبوط ہو, اسٹرانگ ہو. لیکن وفاداری ہماری کشمیر کے ساتھ ہے, ریاست جموں کشمیر میں, جس میں یہ علاقہ بھی شامل ہے. ایک اور بات, یہ جہنم ہے, یہ اعراب ہے, یہ جنت ہے نا. ایک جہنم ہے, ایک اعراب ہوتا ہے, بیچ میں وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ اعراب کہتے ہیں. اس طرف جنت ہے, اس طرف جہنم ہے. جہنم میں سے اگر کسی آدمی کو اٹھا کر اعراب میں پہنچایا جائے تو جہاں اعراب میں جہنم کا سا وہ عذاب نہیں ہے, تو جہنم والا اس اعراب کو جنت سمجھے گا. اور اسے جنت سے کسی آدمی کو اٹھا کر اعراب میں پہنچایا جائے تو اعراب میں جنت جیسی وہ یعنی آسانیاں وہ نہیں ہیں, تو وہ اس اعراب کو جہنم میں سمجھے گا. اعراب اعراب ہے, ایک آدمی نے اس کو جنت سمجھا, دوسرے آدمی نے اسے جہنم سمجھا. یہ لے لیں آپ, وہ جو تصوراتی پاکستان تھا, قائد اعظم کا پاکستان, اقبال کا پاکستان اور میرا پاکستان. جب میں مقبوضہ کشمیر میں تھا, دنیا کی سب سے بڑی تمنا میری اس وقت یہ تھی کاش میں پاکستان دیکھوں, کیونکہ ایک تصور تھا پاکستان. وہ پاکستان یہ سمجھو, اور آج کا پاکستان سمجھے اعراب, اور ہندوستان کو سمجھے جہنم. تو وہ شخص
जिसने जहन्नम भी देखा हो, जन्नत भी देखा हो, वही एराब को एराब समझ सकता है। अब न वो जहन्नम समझेगा न वो जन्नत समझेगा। मेरी खुशकिस्मती या बदकिस्मती, मैं मकबूजा कश्मीर में भी रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में भी रहा हूँ। मेरा वो तस्वर थी पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से कोसों दूर है। कोई कहीं नामो निशान उस पाकिस्तान का नहीं मिल रहा जो मेरे तस्वर में था, जो कायद आज़म के तस्वर में था, जो इकबाल के तस्वर में था। नामो निशान कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन साथ ही मैं मकबूजा कश्मीर में भी रहा हूँ। वहाँ जो कुछ होता है उसको आप मीर साहब आप तस्वर नहीं कर सकते उसका इसलिए कि फिजिकली आपको उससे वास्ता नहीं पड़ा। मेजर हुसैन साहब उसका तस्वर नहीं कर सकते हैं इसलिए कि डायरेक्ट हो सकता है ये यानी आर्मी ऑफिसर की हैसियत से कहीं टकराव हुआ होगा इनके किसी मिलिट्री ऑफिसर से, लेकिन उनका डिप्लोमेट जितना बददियानत और जितना खबीस है उसको मैं जानता हूँ। उनका ब्यूरोक्रेट जो जितना खबीस है उसको मैं जानता हूँ। इसलिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादतियाँ की हैं, पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं। पाकिस्तान ने हमसे अक्सर वो हकूक भी छीने जो डोगरों के ज़माने में थे। उसके बावजूद जब आप इक्वेट करते हैं, बैलेंस करते हैं, एक तकड़ी में इंडिया को डालते हैं, दूसरे में पाकिस्तान को डालते हैं, तो वो यूं तकड़ी हो जाती है। इंडिया बड़ा खबीस है, इंडिया बड़ा जलील है। इसलिए हमें इस हकीकत को, यानी ये मैं किसी को खुश करने के लिए मैं यानी इंडिया में भी पिछले दिनों कुछ ही महीने पहले मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सबसे ज्यादा वहाँ इंडियन वो थे क्या नाम है सहाफी थे। उनको भी मैंने कहा कि तुम लोगों जैसी जलील कौम दुनिया में नहीं दिखे। इसलिए किसी कौम को मजमूई तौर पर जलील कहना कोई अच्छी बात नहीं है। इंटरनेशनल लैंग्वेज में ये गाली है और गाली देना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे वास्ता पड़ा है उन लोगों से। तो इसलिए अगर कोई ये समझता है कि हम पाकिस्तान मुर्दाबाद का कोई नारा लगा के हमें खुशी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि लंगड़ा लूड़ा वो किसी न किसी हैसियत से इस पाकिस्तान में हमारी यानी भलाई, इसके पनपने में हमारी भलाई है, इसको स्ट्रांग होने में मेरी भलाई है। लेकिन मैं चीफ सेक्रेटरी का गला पकड़ूंगा अगर उसने मेरे आवाम के हकूक नहीं दिए। वो एक फर्ज है। महमूद खान गया, 5 लाख रुपया उसका बिल आया है उसके, वो जो पता नहीं कहाँ के लोले लंगड़े आकर एनए हाउस में बैठते थे। उस 5 लाख से हमारे 200 आदमियों की रोजगार मिलती थी। हम लानत भेजते हैं ऐसे हुकूमत पाकिस्तान पर जो इस किस्म के अफसरों को हम पर मुसलत करें। हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, अफराद के खिलाफ लड़ेंगे, सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे। कश्मीर अफेयर्स को लोग काना कहते हैं, मैं कहता हूं नो, दैट इज अंधा। काना नहीं है, वो अंधा है। कश्मीर अफेयर्स क्या वो है डिवीजन, काना डिवीजन कहा जाता है। मैं कहता हूं काने की तो कम से कम एक आंख होती है, उसकी तो कोई आंख ही नहीं, वो तो अंधा है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, पिछले दिनों कोई 5-6 महीने पहले मेरी अफजल खान से मुलाकात हुई। मैंने कहा खान साहब, आप लोग गिलगित बल्तिस्तान को भेड़ बकरियां समझते हैं। मिसाल एक दी मैंने कहा कि सन 46 में शेख अब्दुल्ला श्रीनगर से आया था, अस्तोर पहुंचा, अस्तोर से वापस चला गया। अस्तोर में ये रिमार्क दे के गया कि ये इलाका सोया है और अगले 100 साल तक जिंदा नहीं होगा, जागेगा नहीं। लेकिन 100 साल के बजाय सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर वो नहीं अस्तोरियों ने, गिलगित वालों ने, यानी उनको बल्तिस्तान वालों ने डंडों के जरिए, कुल्हाड़ियों के जरिए भगाया उनको। मैंने कहा खान साहब, आप भी इस इलाके को सोया समझ रहे हैं, आप भी इस इलाके को भेड़ बकरियां समझ रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारा भी वही हजर हो जो डोगरों का हुआ है। और मैं आज भी कहता हूं, जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, उसका गला पकड़ना, उसके खिलाफ पूरी ताकत से आवाज उठाना मेरा हक ही नहीं, मेरा फर्ज है। लेकिन ममलकत पाकिस्तान के खिलाफ मैं कोई चीज उठाने के लिए तैयार नहीं। ममलकत पाकिस्तान नवाज शरीफ के खानदान की जागीर नहीं है। ममलकत पाकिस्तान बेनजीर के खानदान की जागीर नहीं है, या उसकी जागीर नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। उसमें 14 करोड़ इंसान रहते हैं। उसमें 14 करोड़ वो इंसान भी रहते हैं जिनमें से बहुत सुने बड़ी कुर्बानियां दी। आज 2 मिनट के लिए खुदा न खास्ता आप आंखें बंद करके सोचें पाकिस्तान को कुछ हो जाता है तो आपका कश्मीर का मसला कहाँ रहा?
आपके यहाँ के हकूक कहाँ गए, कहाँ जाते हैं? इसलिए पाकिस्तान को जिंदा रहना चाहिए। जहाँ तक ब्यूरोक्रेट्स का ताल्लुक है, उनके खिलाफ आवाज उठाना आपका भी हक है, मेरा भी हक है, मेरा तो फर्ज है। हक और फर्ज में बड़ा ये होता है, फर्क होता है। हक को आप इस्तेमाल करें ना करें कोई बड़ी बात नहीं है, फर्ज की अदायगी आपने नहीं की, बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल फिगर की हैसियत से मेरा फर्ज बनता है, आप लोगों का हक है कि आप उनके खिलाफ आवाज उठाएं। अभी मैं अस्तूर गया था, मेरे अपने भाई का इंतकाल हुआ था। वहां से दो गांव के दरमियान एक तसल थी, 2 साल से नहीं चल रही थी, कुछ कत्ल भी हुए थे। मैंने कहा चलो मेरे भाई हैं, मैं उनकी कोशिश करूँ सलाह कराने की। वहां से आगे एक जगह गया है, अस्तूर से अगर कोई ताल्लुक रखता है, एक जगह है कुटुमसर। कुटुमसर में 1988 में गया था, बेहतरीन एक वो बना था रेस्ट हाउस। फॉरेनर्स आकर रेस्ट करते थे। आपके गया, बिलीव में ना उसकी कोई खिड़की थी, ना कोई दरवाजा था, ना कोई शीशा था, कुछ भी नहीं। उस पर कम से कम यानी 10-15 लाख रुपया उस इलाके पर उस पर खर्च आया होगा। वो 10-15 लाख रुपया जाया क्यों? ये मिस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, ये गलत इंतजामिया की वजह से करना। उन्हें सिर्फ ये था एक चौकीदार रखना था, उसकी हिफाजत हो जाती। वो चौकीदार, मैंने एक्शन से बात की, मैंने कहा एक्शन साहब आपका ये जुर्म है। वो 15 लाख रुपया 10 लाख रुपया जो आपने लगाया वो मेरे हमारे इस इलाके के लिए पाकिस्तान ने या हमारे अपनी रेवेन्यू से आया था। आपके लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ी बददहनती हुई है कि आपका 15 लाख रुपया जाया हो। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने लिए डिफिकल्टीज खड़े, लेकिन जो कुछ वो पाकिस्तान की तरफ से आता है वैसे अपनी जगह की बात है। जो कुछ हम पाकिस्तान को देते हैं जरूरी नहीं कि रुपए की शक्ल में हो, जरूरी नहीं कि माल की शक्ल में हो। मैं कहता हूं इस इलाके की जो जोग्राफियाई अहमियत की वजह से पाकिस्तान की आर्मी को खरबों रुपया जो मिला है, वो उस जोग्राफियाई अहमियत की वजह से है, जो इस इलाके पर पाकिस्तान के कंट्रोल की वजह से उसको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हासिल हुई है। तो क्या ये हमारा पाकिस्तान पर एहसान नहीं है? यहाँ कल जुमे यानी 8 दिन की बात है, यहाँ हमारा सोना उगल रहा है, निकल रहा है। मेरा स्कूल में कराची में एक साहब वो थे, पढ़ते थे। 10-12 साल के बाद मुलाकात हो गई। मैंने यार तो कहाँ गया था? वो जब मेरे यहाँ पढ़ते थे KPT में चौकीदार थे। कहने जी मैं घर गया था तो वहाँ हाल चला रहा था, वहाँ से कुछ पत्थर निकले अच्छे, और वहाँ से मैंने वो पत्थर बेच के इस वक्त 5-6 जीपे हैं, मेरे काम कर रहा हूँ। तो इस तरह हमारे से यहाँ से सोना, ये इलाका सोना उगल रही है, अच्छे यानी पत्थर निकल रहे हैं, बहुत सारी वो और चीज़। और उसके बारे में अब एक और कॉर्पोरेशन बनाई गई है जो फॉरेनर्स को दिए जा रही। मैं कहता हूँ ये पत्थर, ये सोना, ये सारी चीज हमारा हक है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये हमें मिलना चाहिए। इस हैसियत से जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है, उसका गला पकड़ना, वो चीफ सेक्रेटरी है, DC है, होम सेक्रेटरी है या कोई सेक्रेटरी है, मेरा हक ही नहीं, मेरा फर्ज है। लेकिन ममलकत पाकिस्तान के खिलाफ मैं कुछ सुनने के लिए तैयार है। साफ बात। तीसरी बात, 2 चीजें हैं, एक ममलकत पाकिस्तान के बारे में हमारा क्या नजरिया है, और दूसरा यह है कि आपने क्यों नहीं दिया। एक तीसरी बात यह है कि आपका सियासी नजरिया क्या है, अमूमन मुझसे पूछते हैं। तो हमारा सियासी नजरिया 2 अल्फाज में ऐसे होने को, तो ये जो किताबचा आपने लिया है उसमें भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, दूसरे किताबचे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, तीसरे में भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, और इस सिलसिले में जो कुछ हमने किया है उसकी एक 20 साल रिपोर्ट भी हमारे पास आई है, वो भी आपको मिलेगी, आप ले सकते हैं। उसमें हम इतने कोई अमीर जवान नहीं, उसकी थोड़ी सी कीमत रखी है, जो कीमत दे सकता ले सकता है, उसमें भी हमने लिखा है। तो उसमें तो वजाहत के साथ है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा जो नजरिया है वो ये है कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को, जिसमें जम्मू भी शामिल है, जिसमें लद्दाख भी शामिल है, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, इस सारे को मिलाकर एक करके एक आज़ाद और खुद मुख्तार ममलकत बनाना। और हमने यहाँ नहीं कह रहा, मैं इस्लामाबाद में नहीं कर रहा, बल्कि मेरी बात होती है। एक दफ़ा मेरा इंटरव्यू हुआ टेलीफोन पर श्रीनगर के अखबारों में, श्रीनगर के अखबार वाले सारे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया टेलीफोन पर इस्लामाबाद से। उस वक्त भी मैंने कहा, पार वालों को कहा मैंने, उसमें हिंदू बहुत सारे थे, मैंने कहा कि मेरा खुद मुख्तार कश्मीर पाकिस्तान का छोटा भाई हो,
मेरा खुद मुख्तार कश्मीर पाकिस्तान का छोटा भाई होगा, बशर्ते कि पाकिस्तान बड़े भाई की हैसियत से उस पर जो फराइज आयद होते हैं वो अंजाम दे। छोटे भाई का फर्ज है कि बड़े भाई की लिहाज करना, इज्जत करना, एहतराम करना, और बड़े भाई का फर्ज है कि छोटे भाई के नशोनुमा में उसकी मदद करना, उसको उभरने, उसकी शख्सियत को उभारने में मदद देना, उसमें खुद एतमादी पैदा करना। तो वो अगर पाकिस्तान हमारे बड़े भाई का किरदार अदा करता है, तो मैंने हिंदुओं को भी कहा है तुम्हारा इंडिया हमारा बड़ा भाई नहीं होगा, या पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई होगा, शर्त ये कि पाकिस्तान भी अपने फराइज अंजाम दे। ये है बुनियादी तौर पर हमारा नजरिया। तो गिलगित बल्तिस्तान के बारे में हमारा नजरिया जो है ये दो है, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो जो खुद मुख्तार कश्मीर के बनने के बाद इसकी पोजीशन होगी, कश्मीर खुद मुख्तार हो जाता, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर, उसमें आप में इस किताबे में भी हमने बताया है कि उस खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर में 6 सूबे होंगे। एक सूबे वादी कश्मीर, एक लद्दाख, एक जम्मू का मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, हिंदू मेजॉरिटी एरिया, और ये एक गिलगित बल्तिस्तान। बल्तिस्तान वालों का हम ये उन पर छोड़ेंगे कि वो लद्दाख से मिलते हैं या हमसे मिलते हैं, इसलिए कि कल्चरली वो जबान के लिहाज से उनकी जबान जो है लद्दाख वालों से ज्यादा मिलती है। हम उन पर छोड़ते हैं ये वो हमसे मिलते हैं या लद्दाख वालों का एक सूबे से मिलते हैं। यहाँ वालों से वो एक सूबा होगा, आपको सूबाई यानी कि असेंबली होगी, इंटरनल ऑटोनॉमी होगी आपको, यानी एक छठे सूबे की हैसियत से पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की, और वो एक आईनी हैसियत होगी। और उससे पहले जब तक कश्मीर खुद मुख्तार होता है उस वक़्त तक के लिए हमने इस इलाके के लिए 2 अल्टरनेट पोजीशनें रखी। एक तो ये कि इसको आज़ाद कश्मीर के साथ मिलाया जाए, इस तरह मिलाया जाए कि 2 बड़ी तल्ख हकीकतें हैं। आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी जिसने इन तल्ख हकीकतों को जन्म दिया। 1958 में मैं मरहूम कर्नल हसन साहब से मिला था पिंडी में। मैंने कहा हसन साहब आप तो कश्मीर में रहे हैं, आप कश्मीर में आर्मी में रहे हैं, आपने गिलगित की आज़ादी के लिए बहुत काम किया है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में 2 पार्टियां हैं, हम उनमें शामिल हो जाएं तो एक्चुअली एक बैलेंस ऑफ पावर आपके हाथ में रहेगा। तहरीक चलाएं। वो वहां से हाँ करके आ गए, यहाँ आकर गिलगित लीग बनाई उन्होंने। गिलगित लीग मेरे ख्याल में 2 महीने 3 महीने भी नहीं हुए थे तो ऊपर से मार्शल लॉ किया। तो अगर आपने उस वक्त मेरी बात मानी होती, ये आज़ाद कश्मीर का हिस्सा बन गया होता, आप यकीन करें इस वक्त ये इलाका सियासी शऊर के लिहाज से आज़ाद कश्मीर से कोई 30-40 साल पीछे। आज़ाद कश्मीर वालों ने कासिम शाह को 2 साल आज़ाद कश्मीर में घुसने नहीं दिया, और वही कासिम शाह इस इलाके को बाप की जागे समझता है। ये है फर्क उस सियासी शऊर के होने और न होने में। तो आज भी हम समझते हैं कि अगर हम आज़ाद कश्मीर के साथ मिले, यहाँ के लोग आज़ाद कश्मीर के साथ मिले, और इन शराइत के साथ हमने शर्तें भी रखी। शर्तें ये कि जो हमें प्रेशर हम पर रहा है गुज़श्ता 50 साल, उसका आज़ाद कश्मीर वाले अपने दिल पर पत्थर रखकर, सीने पर पत्थर रखकर कुछ इजाला करें। अगर आबादी के लिहाज से हमें 12 सीटें मिलती हैं तो 18 दे दें 5-10 साल के लिए, ये 24 के 24 उसमें शामिल हो जाएं। और साथ ही ये भी कि अगर प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर का है तो सब प्राइम मिनिस्टर यहाँ का हो, प्राइम मिनिस्टर वहाँ का है तो प्रेसिडेंट यहाँ का हो। इसी तरह बजट भी हो, सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर, हाई कोर्ट है वहाँ पर, वो 6-6 महीने यहाँ रहे, या एक बेंच पूरी यहाँ इसमें रहे गिलगित बल्तिस्तान में। ये एक शक्ल है आज़ाद कश्मीर के साथ हमारी लिंक की। उसमें मेरे कुछ बहुत सारे दोस्त यहाँ गिलगित वाले कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं। उसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आज़ाद कश्मीर के तर्ज की एक हुकूमत यहाँ बनाई जाए, लेकिन टॉप पर कोई लिंक हो आज़ाद कश्मीर के साथ, सदर कॉमन हो या चीफ जस्टिस कॉमन हो या कोई अथॉरिटी कॉमन हो दोनों की, और वो भी एक बार अगर वहाँ से इलेक्ट होता है तो दूसरी बार यहाँ से हो। ये 2 हमने मुतबादल हल रखे हैं इसके लिए गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा फ्यूचर के लिए। आगे जो खुद मुख्तार कश्मीर बनेगा, जो हमारा नजरिया है, मुझे ये बताएं। ये हमारा खुशकिस्मत है, मेरे ख्याल में नजम खान जनरल कोई जनरल बन गया, लेकिन आपके यहाँ तो ब्रिगेडियर के ओहदे से उसके बाद फुल स्टॉप लगता है कि नहीं? लगता है ना। कश्मीर खुद मुख्तार हो गया,
تو اس علاقے میں اس خود مختار کشمیر میں صرف 3 قومیں ہیں جن کی فوجیں ہوں گی، یا گلگت بلتستان والے ہیں، یا یعنی پنچ کے سدن ہے، یا جموں کے ڈوگرے ہیں۔ آپ کا کمانڈر چیف بھی بن سکتا ہے۔ نیوی تو ہماری نہیں ہوگی کہ اس لیے کہ ہمارا سمندر نہیں ہے۔ ایئر فورس کا کمانڈر چیف اگر یعنی پنچی ہے یا جموں والا ہے تو آرمی کا کمانڈر چیف آپ ہو سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ آپ کا کمانڈر چیف کبھی ہو۔ خود مختار کشمیر میں 184 میل یعنی آزاد ملک ہیں دنیا میں۔ اس 184 میں سے 120 ملکوں میں تو پاکستان کے سفارت خانے ہوں گے، یہ خود مختار کشمیر کے سفارت خانے ہوں گے نا۔ اور 120 سفیروں میں سے 10 سفیر تو آپ کے حصے میں آئیں گے۔ کیا آج آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس علاقے کا کبھی کوئی سفیر بھی بنے گا؟ نہیں سوچ سکتے۔ خود مختار کشمیر کی صورت میں آپ کو 10-15 سفیر آپ کے یہاں سے ملیں گے، آپ سر اونچا کر کے چلیں گے، ہمارے سفیر بھی، ہمارے فرسٹ سیکرٹری، ہمارے یہ سیکرٹری۔ جوڈیشری میں یہاں جوڈیشری کیا ہے؟ میرے خیال میں اگر عیسیٰ صاحب یا وہ یہاں اپنے دوسرے وکلا صاحبان ہیں وہ جانتے ہیں جوڈیشری کیا ہے۔ یہاں آزاد کشمیر کی جوڈیشری، پاکستان کی ISI، پاکستان کی IB، پاکستان کی فارن آفس، تینوں سے منحرف ہو کر، تینوں سے بغاوت کر کے آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا۔ یہ ابھی حال والا نہیں، گلگت بلتستان والا نہیں، اس سے پہلا جسٹس سراب مرحوم، وہاں سے مقبوضہ کشمیر سے کوئی آتا تھا، یہاں اریسٹ ہو کے اندر چلا جاتا تھا۔ اس نے کہا مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر ایک ہے، اپنے ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانا کوئی جرم نہیں۔ اس میں ISI نے، اس نے IB میں، فارن آفس نے، ہوم ڈپارٹمنٹ نے پوری مخالفت کی، لیکن اس مجاہد نے کہا، آزاد کشمیر کے چیف جسٹس نے کہا نو۔ تو یہ اس قسم کی آپ کو ایک ڈگنیٹی مل سکتی ہے، آپ کو ایک کردار مل سکتا ہے، آپ کو ایک شناخت مل سکتی ہے۔ باقی جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم نے ایک وہ رکھا ہے چھوٹا سا ایک کیا کہہ سکتے ہیں، ایک ماٹو۔ ایک تو میں نے کہا نا جھکنا بگنا اور رکنا ہماری اس میں نہیں۔ دوسرا ہم نے وہ پوری ہماری جو آئیڈیالوجی اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب ہماری روح ہے، کشمیریت ہماری پہچان ہے۔ کشمیریت یہ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کشمیری بولنے والے، کشمیریت کا مطلب ہے پوری ریاست جموں کشمیر کے باشندے، اس میں آپ بھی، جموں والے بھی، لداخ بھی، بلتستان بھی آتا ہے۔ ہماری پہچان ہے اور پوری ریاست جموں کشمیر کی خود مختاری جو ہے وہ ہماری منزل ہے۔ یہ ہمارے موٹوز ہیں اور اس سلسلے میں میں آیا ہوں، یہاں ہم آرگنائز کر رہے ہیں تنظیم کو۔ آپ لوگ جو یہ اس نزدیک کو یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، میرے خیال میں آپ میں اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ٹھیک ہے پھر بھی ہندو رہتا ہے تو میرے خیال میں وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے اور اپنے ہندو مت کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے۔ تو اس حیثیت سے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظریہ ٹھیک ہے، اس علاقے کے ٹھیک ہے کے لیے ٹھیک ہے اور مجموعی طور پر ٹھیک ہے، اور اگر وہ ڈائریکٹ نہیں آ سکتے ہیں ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک یہاں کی سیاست کا تعلق ہے، میں یقین دلاتا ہوں یہاں عوام کو بھی اور سیاسی ایلیمنٹس کو بھی کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ بالعموم اور میں مسمی امان اللہ خان جس کی کا خمیر، جس کی پیدائش بھی اس علاقے کی ہے، اگرچہ میں علاقائیت میں یعنی یقین نہیں رکھتا، میرے لیے گلگت کا یہ کیا کہتے ہیں آئیبیکس لاج کی یہ اس میں یہ لان، یہ سامنے میرے خیال میں یہااں کہیں تھا گلگت اسکاؤٹس کا کوارٹر گارڈ، وہاں میں نے 4.5 مہینے گزارے کوارٹر گارڈ میں، ادھر کہیں تھا۔ تو اس جگہ پر میں سری نگر کے حضرت بل کے علاقے میں، جموں توی میں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ان علاقوں کو ایک سمجھنے کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ سے، اس مٹی سے، اپنے ضمیر سے، اپنے ہر چیز سے عہد کیا ہے۔ میں یہاں آ کر یہ کہوں جی میں یعنی صرف اور صرف گلگتی ہوں، یہ میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، میں اس آئین کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا جس کے تحت میں نے میں اس تنظیم کا یعنی پریزیڈنٹ۔ میری یہ گزارشات تھیں، آپ میں سے جو اصحاب چاہیں جس قسم کا سوال کرنا چاہیں میری ذات سے متعلق ہو، عموماً میں ہم یہ اپنے جلسوں میں بھی سوالات مانگتے ہیں اور ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ جو کچھ سمجھتے ہیں تو ہر آدمی اپنے بارے میں بڑا خوش فہم ہوتا ہے، خوش فہمی ہوتی ہے،